Okay, a very good morning to all my dear students. I am C.S. Shweta and we are continuing with professional program Compliance Management Audit and Due Diligence. So again, I am going to remind you the same thing, Group 1, paper number 3, very scoring paper, and we are studying from our study module, right? As you can see, this is a study module dancing, right? So this is a study material, what we are doing, and we are going to start with the chapter lesson number 2. So lesson number 1 we have completed successfully, that is compliance framework. We have talked about the meaning of compliance framework, compliance charts. We have talked about all the necessary compliances under Companies Act 2013, right? So now we are going to start with a fresh new chapter under compliance management. As we know that the whole subject is divided into three parts, right? So if we just look up to our whole book, we have three parts of this chapter. We have part A, okay. We have part B, and we have two parts: compliance management and audit, right? DD used to be the third section of this chapter, like in the old syllabus, right? But now we have only one chapter of due diligence. We have comparatively a lot of chapters in audit and few chapters in compliance management. So if I have to talk to you about your compliance management, so we know that there are a lot of chapters in compliance management, which is 40 marks also, and you can write in your own language. So compliance management is comparatively easy part if I have to say in the subject. Then we have audit. Audit is little technical, but still it is manageable and it is easy to write about audit also, right? So in your book, your study material. So once I have told you very clearly that your study material is something very important for you, because whatever question comes in ICSI is from study material. So आपने एक बार study material से कर लिया, then you really need nothing. You need nothing in your exam if you have completed your study module. आज आपकी स्टडी मॉड्यूल इतनी भाग क्यों रही है? एनीवे, लेसन नंबर 1 वी हैव टॉक्ड अबाउट सी कंप्लायंस मैनेजमेंट का लेसन नंबर 1 क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क. हमने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की एक एक बात कर ली है सब कुछ. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लेसन नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड. So let's go to documentation and maintenance of records. Okay, let's go to the new chapter, compliance, documentation and records. Okay. So the chapter which we have done in the last class, that is compliance framework, I have told you very clearly what you need to do with the chapter that we have done. How are you going to practice that chapter? Firstly, in the chapter, you have to do the questions which are. ये इतना ऐसे क्यों लिख रहा है? मुझे ना 1 मिनट का टाइम दीजिए. Why touch pen is not working properly? That is going to disturb my class. Give me a moment. Let me just fix the problem. Okay. So the chapter which we have started is documentation and maintenance of records. Yes, now it is working properly. Maintenance of records. So this is our lesson number 2 in compliance management. So the important point I'm going to discuss is, why are we doing this chapter? Why this chapter is in your course? Because a company secretary is very much empowered with the responsibility and accountability of maintaining records. So documentation karna, records maintain karna is one of our prime responsibility and duty of company secretary, right? So if we start documentation and maintenance of records, so the first thing is, I don't know why your study material is, yes.
First, we're going to talk about the introduction, then we're going to talk about the purpose of documentation, electronically repository of documents, maintenance and inspection of documents, electronic form, virtual physical data room, coding, nomenclature, safety, retrieval of records. Then we are going to talk about setting up a record room, privacy of records and its control, lesson roundup. सो इसमें आप बोल रहे हैं कि आपको ये सारी बातें हम करने वाले हैं. इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं. बहुत बार ये क्वेश्चन देखा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड फिजिकल डेटा रूम, हाउ टू सेट अप अ रिकॉर्ड रूम, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट द डिटेल्स, लाइक हाउ टू सेट अप अ रिकॉर्ड रूम. रिकॉर्ड रूम सेटअप करने के लिए कुछ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर देखना पड़ता है. सोचिए अभी आप पहले के ज़माने में जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करते थे, डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल होती थी, राइट. फिर एक रूम होता था कंपनी में जहाँ पे बहुत सारे रैक्स होते थे और उन रैक्स पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती थी. पुराने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते थे. आपने रजिस्टर रिकॉर्ड्स कंपनीज एक्ट 2013 में भी पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव स्टेज में, एंड वी हैव रेड अबाउट इट कि हमें कुछ रजिस्टर रिकॉर्ड्स 8-8 साल के लिए मेंटेन करने पड़ते हैं. तो ये सब की जो कस्टडी फिजिकल फॉर्म में होती थी, फिजिकल कस्टडी होती थी डॉक्यूमेंट्स की. एंड फिजिकल के अपने ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो फिजिकल कस्टडी के जो एडवांटेजेस हैं वो भी नज़रअंदाज नहीं करे जा सकते और डिसएडवांटेजेस भी. बट नाउ अ डेज फिजिकल से क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कस्टडी, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी जिसको हम बोलते हैं. तो फिजिकल बेटर है या इलेक्ट्रॉनिक बेटर है? आज के एरा में तो इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक थिंग. इलेक्ट्रॉनिक के बहुत फ़ायदे भी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, बहुत लोग नहीं रखने. फिजिकल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है. फिजिकल पेपर बहुत जल्दी टैम्पर हो जाता है, ख़राब हो जाता है. बट जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए मेंटेन्ड होते हैं. उसके बाद फिजिकल में क्या है ना, जैसे ये जो रिकॉर्ड रूम है, जो फिजिकल डेटा रूम है, इसके बाहर आपने किसी को खड़ा करा, मतलब जो देख रेख कर रहा है, आप इसको ब्राइब करोगे एंड एनीबडी कैन टेक द एक्सेस ऑफ द फिजिकल डेटा रूम. बट इलेक्ट्रॉनिक कस्टडी में ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रॉनिक रूम जो वर्चुअल डेटा रूम जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पे बिना फिंगरप्रिंट के नहीं जा सकते. देयर इज अ कोड जिसके बिना हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता. पूरा टाइम किसी को बाहर अपॉइंट करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन और इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल के बारे में बात करेंगे. डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स का कैसे नाम रखना चाहिए. बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, मतलब आप रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी आपके पास होती है एज अ कंपनी सेक्रेटरी. तो कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें कि जब भी रिट्रीवल, जब भी ज़रूरत पड़े उन डॉक्यूमेंट्स की, तो हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे ये सारी बातें हम करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो इस चैप्टर में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, द एक्ट विच रेगुलेट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015. सो कंपनीज एक्ट 2013 तो हर कंपनी पे लगता है. उसके बाद कंपनीज मैनेजमेंट एडमिन रूल्स जो हैं वो बताते हैं आपको रिकॉर्ड्स के बारे में. एंड देन योर सेबी एलओडीआर विच इज एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड एंटिटी. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय डॉक्यूमेंट एंड व्हाट यू मीन बाय रिकॉर्ड. A document is a part and parcel of written, printed, or electronic matter that provides certain information. The information may be structured or unstructured format. Documents may usually be changed and revised as per requirement. In our daily lives, we all create, receive, and use documents. ये जो आप एक बिल, कहीं से आप कुछ खरीद के आते हो, वो जो आपके पास बिल होता है, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट इज समथिंग दैट इज गिविंग एनी इंफॉर्मेशन. Document can be anything that is written and giving you information is called as document, right? And record is a matter of evidence. When a document is to be kept for a certain period, तो वो record बन जाता है, ठीक है. तो document क्या है? Document एक piece of information है. Document क्या है? Document is a piece of information. And record क्या है? जब हम एक डॉक्यूमेंट को एविडेंस की तरह रखते हैं, स्टोर रखते हैं, कस्टडी रखते हैं, देन इट बिकम्स अ रिकॉर्ड, राइट, विच इज लाइक अ एविडेंस.
Many records initially start out as documents and later become records when they are used as evidence. तो document होता है, लेकिन अगर हम उसको एक समय के लिए रखते हैं, then it becomes a record and presented as a evidence. Record can be used as a proof in legal obligation or in transaction of business. It is also important to keep in mind that not every record is a document. So whatever you keep for a long time doesn't mean it is a document. डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कब बनता है? जब वो डॉक्यूमेंट को आप काफ़ी समय के लिए रखते हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 आपको बोलता है कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं फॉर फ्यू ईयर्स। लाइक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यू नीड टू कीप in record for some years, some for 5 years, some for 8 years, some needs to be disposed even after not to be disposed even after 15 years, right? तो हर किसी का एक टाइमलाइन होता है जब हमें डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिकॉर्ड, राइट? सो ये रिकॉर्ड जो है हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? सम एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड्स में इंक्लूड द फाइनल रिपोर्ट्स, ईमेल्स, कंफर्मिंग एक्शन, डिसीजन, फोटोग्राफी, स्प्रेडशीट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे रिकॉर्ड होते हैं जो हमें रखने पड़ते हैं। अच्छा, आपने कभी किसी को सुना है कि अरे ये तो मैं अपने रिकॉर्ड के लिए रख लूँ? तो रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि ये एक प्रूफ की तरह है जो आपको कल को काम आ सकता है। सो डॉक्यूमेंट बिकम्स अ रिकॉर्ड व्हेन इट इज टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग विच इज इन राइटिंग, विच इज गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। और जब वो एक लंबे समय के लिए होता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी is to prepare and maintain the secretarial and other records which are required to be kept by the company. And in many cases, the role is extended towards creating and execution of the critical corporate records. This required good understanding of what documents need to be created. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ही वाइटल रोल है। कैसे? यू बिलोंग टू अ लीगल डिपार्टमेंट। अंडरस्टैंड, आप एक लीगल डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो। And the major objective of a CS is compliances. And compliances ensure करने के लिए you need proper documentation in a organized way. तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, ये सब लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है। एंड सो व्हेन इट कम्स टू लीगल डिपार्टमेंट, देन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड बाय company secretary. So at the next level of documentation, it is the duty of CS to ensure the confidentiality of the documents. खाली documents को maintain, अच्छा हमारा काम documents की drafting से लेके, documentation से लेके, उसकी preservation से लेके, उसके retrieval से लेके, उसकी confidentiality तक होता है। अभी जो इतनी सारी बातें बोली है, मैंने क्या बोला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम CS क्या कर रहे हैं? हम CS drafting कर रहे हैं। आपके कोर्स में भी है ना ड्राफ्टिंग। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिजर्वेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, प्रिजर्व कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के बाद रिट्रीवल कराना। रिट्रीवल का मतलब जब जरूरत पड़ती है तो उसको प्रेजेंट करवाना, ठीक है? उसको मेंटेन करना। अब मेंटेन में क्या आता है? आई तुमने सी ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट रखा और तुम्हारे हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो गया, कंप्यूटर का जो विंडो है वो खराब हो जाती है, तुम्हारे सी ड्राइव से सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आएगी ना, दैट वेयर इज द डेटा, वेयर इज द इन्फॉर्मेशन। तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस मतलब कि आप उसको प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में दोनों में रखें। अब आप कहेंगे ये क्या है प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज? सी कंप्यूटर में जो हम स्टोर करते हैं ना अपनी इंफॉर्मेशन फाइल्स, उसको प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। और जब हम उसको पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD इन सब में स्टोर करते हैं, उसको सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है ना? वो IT वालों का काम है, इतनी डिटेल में नहीं जाना, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टोरेज करनी विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स की मेंटेनेंस का काम भी हमारा है। एंड देन द लास्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. To maintain the confidentiality of documents is also the prime responsibility of a company secretary. You being a professional of a company, a corporate, you are a KMP of a company. So company की कोई भी ऐसे रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है that needs to be kept confidential, तो आपको रखना पड़ेगा confidential. So एक डॉक्यूमेंट को लेके हमारे ये सारे रोल है, उनको बनाना, उनको प्रिजर्व करना, नाम देना, उनको रिट्रीव कराना जब भी ज़रूरत पड़े, उनको मेंटेन करना कि कल को खो ना जाए, भाई टैम्पर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक की अपनी प्रॉब्लम है, अगर फिजिकल पेपर खराब हो जाता है समय रहने पे, तो इलेक्ट्रॉनिक का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक में ज़रा सा वायरस आया कंप्यूटर में तो आपका डेटा लॉस्ट हो गया, तो इसकी भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेपर के फॉर्म में भी कॉन्फिडेंशियल होना पड़ता है और वर्चुअल में भी। पेपर में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर कैन बी
ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑनलाइन में क्या है, एटलीस्ट आपका फिंगरप्रिंट, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं. नोबडी विल बी एबल टू सी योर डॉक्यूमेंट. तो कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों के लिए जरूरी है, बट इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ी आसान है. आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर बन गए हैं. आपका फोन ही मैं नहीं देख सकती अगर आपके फोन में लॉक लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है. सो योर फोन has become वेरी कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद यू, राइट? सो कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये सारे काम है कंपनी सेक्रेटरी के की रोल्स व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन. सो यहाँ कह रहे हैं एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इट इज अ ड्यूटी ऑफ सीएस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, टू रिक्वायर कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में हो कॉर्पोरेट पॉलिसी में और ऑर्गेनाइजेशन में, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से करी जाए, राइट? और कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा ना देखा जाए कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को आप स्प्रेड कर रहे हैं या स्प्रेड हो गई हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए. केस लॉ देखते हैं एक. Yes. Consequences of non-maintenance of records, updated register of members. In the matter of Mercer's SDU Holding Private Limited, the ROC Bangalore has passed an adjudication order by imposing a penalty. तो आरओसी ने एक प्राइवेट लिमिटेड पे पेनल्टी लगाई. किस चीज़ की पेनल्टी लगाई? क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे थे एज पर कंपनीज एक्ट 2013. Every company limited by share shall from the date of its registration maintain a register of its member in MGT 1. सो MGT 1 में रजिस्टर मेंबर होते हैं, तो सारे मेंबर्स का एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सबके नाम, होल्डिंग, सब कुछ मौजूद हो. पर MGT 1 फाइल नहीं करा, MGT 1 मेंटेन नहीं करा. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी पर्सुएंट टू सेक्शन 206 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो इंक्वायरी के जो सेक्शन है ना 206 से 213 तक होते हैं. तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी में ये देखा गया कि कंपनी ने रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करे हुए थे, ठीक है? एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनको पर्सनल हियरिंग के लिए नोटिस दिया गया. एंड कॉन्सिक्वेंटली द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट उन्होंने पेनल्टी लगाई डायरेक्टर्स और कंपनी के ऊपर. तो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस करना, रिकॉर्ड्स को मैनेज करना इज अ वेरी प्राइम टास्क, ठीक है? The company secretary is also responsible for storing, maintaining, retrieving, certifying and explaining corporate documents. तो अभी जो इतनी सारी चीज़ें मैं बता रही थी, स्टोर से लेके मेंटेन करना, रिट्रीव कराना, सर्टिफाई मतलब क्रॉस चेक करना और एक्सप्लेन करना डॉक्यूमेंट्स को जब जिसको जरूरत पड़े. Many issues are implicated relating to document storage, including the span of time the records need to be retained. आपने पढ़ा ये कंपनी लॉ में, सालों सालों तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं हमें. सो इंश्योर करना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेफ प्लेस में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट का बैकअप होना ज़रूरी है. इलेक्ट्रॉनिकली तो हम बैकअप ही रख सकते हैं. देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस में दोनों चीज़ें होती हैं. फिजिकल की भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी की भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है. फिजिकल की मेंटेनेंस क्या करेंगे आप? कितने अच्छे से पेपर को रखेंगे, पर पेपर एक टाइम के बाद उसकी लाइफ खत्म होती है. इलेक्ट्रॉनिकली में क्या है, बैकअप होना चाहिए. इफ़ योर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन C drive, then it should be in E drive also, F drive also, hard disk also, so that the documents are not lost and tampered. So इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की भी मेंटेनेंस होती है. In such cases, oh, ये देख रहे हो आप आज आपकी बुक को क्या हो रहा है? I don't know. In such cases, a company secretary is often responsible to be at different location at corporate headquarters, including location around the world. In such cases, the company secretary must consider whether and to what extent he should rely on local partners in maintaining and creating corporate records, as well as what extent he or she must exercise oversight. So, a company secretary cannot be there at the headquarters all the time. ठीक है ना? सारे जो कंपनी के रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? कंपनी के हेड ऑफिस में होते हैं. एंड हेड ऑफिस में रहना फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी देयर ऑल द टाइम. तो कंपनी सेक्रेटरी उस समय किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं? कौन से थर्ड पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल? तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द प्रोफेशनल, दैट इज CS, कि उनको ही सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन और रिट्रीवल कराना है. बट अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसको दी रखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, राइट? द कंपनी सेक्रेटरी मे ऑल्सो एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड मे बी इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग और एडवाइसिंग. तो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन, एडवाइस करना, ये सब CS का ही रोल में आता है. In the matter of Welspun Project Limited versus NCLT Ahmedabad bench, it was observed that register of directors shareholding of the petitioner company did not disclose the complete particulars as required under section 307.
of Companies Act, now Section 170 of Companies Act 2013. The ROC's report observed that this violation was committed for about 8 years. Petitioner admitted that violation, filed petition under Section 621A. Now what is Section 441? Section 441 हमारा कंपाउंडिंग का है. तो जो आप कंपनीज एक्ट का है, तो आपका कंपाउंडिंग का मतलब होता है व्हेनेवर देयर इज अ वायलेशन. जब भी डायरेक्टर कुछ भी गलत करते हैं, उन्होंने इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें रजिस्टर मेंटेन नहीं था, तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं ना, आरओसी में एक एनसीएलटी में क्या करते हैं, एक अपील करते हैं कि हमें कम हमारे ऑफेंस की कंपाउंडिंग हो जाए. कंपाउंडिंग मतलब फाइन देके छोड़ दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टर्स ऑल्सो नो कि अगर ये चीज़ इम्प्रिजन में जाएगी सो डेफिनेटली वो उन पे इम्प्रिजन में चली जाएगी, तो आपको पता ही है वो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे. राइट. पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पस है? सबसे पहले तो हमें को ये बताया कि डॉक्यूमेंटेशन है क्या. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंटेशन? पर्पस तो बात की बात है. चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस. डॉक्यूमेंटेशन में जो जो आता है वो है ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंट बनाना, क्योंकि आप लीगल बैकग्राउंड के हो तो आप सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करोगे लीगल के जो होने चाहिए एक डॉक्यूमेंट में. सो ड्राफ्टिंग से लेके स्टोरिंग, ठीक है, एंड प्रॉपरली नेम करना डॉक्यूमेंट्स को, रिट्रीव कराना, रिट्रीव मतलब वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड. मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आ गई? मेंटेनेंस में आ गया उनका बेसिकली मेंटेनेंस में, जैसे मेंटेनेंस होता है कि लंबे समय के लिए जो आपको उसको रखना है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करके रखना है. प्रिजर्वेशन आपकी मेंटेनेंस में आ जाती है कि आपको प्रिजर्व करके रखना है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है ना. उसके बाद यू नीड टू टेक ऑल द मेजर टू कीप डॉक्यूमेंट इन द सेफ प्लेस. एंड देन कॉन्फिडेंशियलिटी also comes under maintenance. So documentation and maintenance of records, यही है ना चैप्टर का नाम, documentation and maintenance of records. So documentation and maintenance, when you talk about, there are it is of two words, documentation and maintenance. So documentation involves few activities and so the maintenance also. But all these activities किसका काम है? Company secretary. अब ये इस the key role is of CS to play when it comes to documentation and maintenance. That is the major reason we are doing this chapter in professional stage. और क्या रीजन हो सकता है? ठीक है ना. सो डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब वो आपके मन में आ सकता है कि ड्राफ्टिंग इज अ वर्क ऑफ एडवोकेट. yes it is, of course it is, but there are a lot of documents जो एक CSP ड्राफ्ट कर सकता है और देख सकता है कि उसमें क्या गलती है. ड्राफ्टिंग हमें पता होगी तभी तो हम गलती निकाल पाएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हुआ है या नहीं. राइट. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन में देखा ना क्या क्या है, आपका स्टोरेज, ड्राफ्टिंग, रिट्रीवल कराना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में आता है. सो पहला पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? Documentation is a tool for professionals to serve better to their clients in a timely and effective manner. Client service, how? अब एक suppose I have a client and I have to draft their documents. ठीक है, उनका कोई केस चल रहा है एनसीएलटी में, तो उस केस में ऑब्वियसली मुझे उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखनी है, फाइलिंग प्रॉपर रखनी है. तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखूंगी, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन में प्रॉपर रखूंगी, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा अपनी प्रैक्टिसिंग सर्विस सर्व करना क्लाइंट्स को. सो क्लाइंट सर्विस इज वन ऑफ द मेजर पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. कम्युनिकेशन, अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा है. अच्छा, अगेन हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बातें आ रही हैं. अच्छे से इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया हुआ है, उसको स्टोर किया हुआ है, उसको नेम करा हुआ है, उसको रिट्रीव करना आसान है. अच्छा, कभी आपने वार्डरोब में देखा है कपड़े कैसे रखते हो? कभी कभी कोई चीज़ इतनी संभाल के रख देते हो कि खुद ही नहीं ढूंढने को मिलती है. दिस हैज हैपेंड विद मी लाइक ट्रिलियंस टाइम. मतलब मैंने कोई चीज़ रखी और जब रखी तो ऐसे सोच के रखी है, बहुत संभाल के रखी है, ठीक है, बट जब वो उसकी ज़रूरत पड़ी तो ढूंढने पे मिल ही नहीं रही है, याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है. सो इसका मतलब मैं उस चीज़ को रिट्रीव नहीं कर पाई जब ज़रूरत थी. But as a CS, your document should be properly stored so that it is easy for you to
retrieve मतलब to see the instrument, they see the document as and when required. So it is easy for you to retrieve your instrument, right? तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डॉक्यूमेंटेशन में आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट को बनाना, उसको स्टोर करना, उसको प्रॉपरली नेम करना। आप अभी पढ़ा ना, अभी आपने लेसन उसमें आउटलाइन में क्या है, कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर, इसका मतलब कि हम कैसे नाम दें डॉक्यूमेंट को, रिट्रीव करना आसान हो। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं और कह रहे हैं कि ये सब करने का पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप एक अच्छी क्लाइंट सर्विस दे पाएंगे। दूसरा है कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएंगे। कम्युनिकेशन किससे? डॉक्यूमेंटेशन इज बेस्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स। क्लियर, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन अगर होती है तो उससे एक परमानेंट रिकॉर्ड, एक एविडेंशियल प्रूफ बनता है क्लाइंट का, ठीक है ना। सपोज आई एम कंडक्टिंग ऑडिट फॉर माई क्लाइंट और मैंने ऑडिट के समय क्या क्या वर्किंग पेपर्स रेडी करे, अगर मैं उनको मेंटेन नहीं करके रखूंगी, उनका रिकॉर्ड नहीं रखूंगी, सो कल को अगर मेरे ऊपर कोई बात आती है, सो आई विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट और डिफेंड माई सेल्फ। अगर आज मैं कुछ ऑडिट कर रही हूँ और और क्या है, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि अरे मैंने ये चीज़ देखी थी ऑर्गेनाइजेशन में बट मैंने वो वर्किंग पेपर खो दिए, सो एज अ पीसीएस आई विल नॉट बी एबल टू डिफेंड माई सेल्फ कि मेरी ये गलती नहीं है, राइट। सो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट से कम्युनिकेशन में आसानी होती है, क्लाइंट सर्विस देने में आसानी होती है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, documentation is an integral part of professional practice and forms the basis for evidence of professional conduct. आप कितने अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करते हो, कितने अच्छे कौन से रिकॉर्ड्स आपने कैसे मेंटेन करके रखे हैं, तो ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सो क्या क्या चीज़ें हैं? पहला हमने कहा कि आप क्लाइंट सर्विस अच्छी करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत बार तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट तो बोलता है कि हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है फॉर ईयर्स। दैट इज अवर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी एक ही करना ही है। एक तो होता है आप आउट ऑफ विश कर रहे हैं, जैसे एज अ पीसीएस आई एम थिंकिंग नहीं नहीं मैं अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करूंगी। एक और पीसीएस है वो भी काम कर रहे हैं बट वो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं करते, लेकिन कुछ सेक्शंस के अंडर तो हमें ये लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि हमें करना है। Professionals are required to make and keep records of their professional work in accordance with the practice standards, जो उनको करने ही पड़ते हैं। It is mandatory for them to do it, right? It is a legal requirement. तो अभी तक आपने क्या क्या बात करी? क्लाइंट सर्विस, कम्युनिकेशन, लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अच्छी क्लाइंट सर्विस देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन रखते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर। उसके बाद आपका जो अगला है दैट इज क्वालिटी। डॉक्यूमेंटेशन में बी यूज टू इवैल्यूएट प्रोफेशनल प्रैक्टिस in terms of peer review, quality review, audits and accreditation processes, regulatory inspections are or critical incident reviews। तो कह रहे हैं कि अच्छा peer review क्या होता है जो यहाँ पे मेंशन करा गया है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का आईसीएसआई खुद peer review कराता है। आईसीएसआई अपने पैनल में, अपने पैनल से कुछ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को भेजते हैं फर्म में। जैसे मेरी फर्म है, मेरी फर्म का पीयू होना है, पीआर होना है, सॉरी पीयर रिव्यू होना है, तो पीयर रिव्यू के लिए आईसीएसआई अपन मतलब सीएस को ही भेजेगा मेरे फर्म में चेक करने के लिए कि मैं कैसे सर्विस दे रही हूँ क्लाइंट्स को। अब आईसीएसआई कौन से सीएस को भेजेगा? प्रैक्टिसिंग सीएस को भेजेगा। कौन से वाले पीसीएस को भेजेगा? उन पीसीएस को जिन्होंने पैनल में अपने नाम दिए हुए। नाम किस चीज का दिया हुआ है? कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम पीयर रिव्यू करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, पीयर रिव्यू वाले चैप्टर में करेंगे। तो अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी है और सपोज मेरी और फर्म का पीयर रिव्यू होता है, तो जो भी प्रैक्टिसिंग सीएस पीयर रिव्यू करने आएंगे, अगर वो मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आई शुड बी हैविंग इट, राइट। अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प मी फॉर क्वालिटी रिव्यू ऑल्सो। Research. Documentation is a valuable source of data for researchers. It provides information to professional, evaluates client outcomes. So जितना ही मेरा डेटा है, this will help me to evaluate my clients. अच्छा, बहुत बार ना आप बार बार ये पढ़ रहे हो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने ध्यान दिया? आपने ध्यान दिया कि जितने भी रिसर्च, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका
रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपको नहीं लग रहा है ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना? क्लाइंट सर्विस, कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, लीगल रिक्वायरमेंट क्लाइंट के साथ, क्वालिटी फॉर क्लाइंट, रिसर्च करना इफ यू हैव क्लाइंट डेटा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पीसीएस एंड द रिसोर्सेज आर मैनेज्ड। ये सब कुछ ज़्यादातर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हम कर रहे हैं वो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना? उससे कंपनी की क्वालिटी, कम्युनिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पे अगर एक सीएस की इंडिविजुअल बात करी जाए तो एक सीएस एज अ पीसीएस ही तो काम करता है ना इंडिविजुअल। जब वो कंपनी के लिए काम करता है तो वो तो कॉर्पोरेट डेटा बन जाता है, कॉर्पोरेट के रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, कॉर्पोरेट के बेनिफिट्स की बात होती है। तो यहाँ पे जब बेनिफिट्स की बात हो रही है तो एज अ पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। क्लाइंट सर्विस देने में आसानी होती है, कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पीसीएस पहली बार, लीगल रिक्वायरमेंट है हमारी, हमारा रिसर्च करने में आसानी होगी और रिसोर्सेज को मैनेज होंगे प्रॉपरली अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो। अ प्रोफेशनल, a multinational company conducts operation across the globe and employ millions of people, and on everyday basis millions of transactions are carried out. To maintain company's interest, ensure the proper compliance of laws and retain the confidence, proper documentation should be there. एक तो देखो ये तो ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर, ठीक है? एक तो ये कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है। एक से यस, तो यहाँ कह रहे हैं कि कंपनी के जो सॉरी, आई हैड टू मैसेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ कह रहे हैं कि कंपनी के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मल्टीनेशनल कंपनी जो इतने सारे बिजनेस ऑपरेशन कर रही है अपने, अगर वो बिजनेस ऑपरेशन कर रही है और अगर वो चाहती है कि कंपनी के इंटरेस्ट में चीज़ें बनी रहें तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अभी तक ना हमने बात करी है डॉक्यूमेंटेशन की। प्रिंसिपल्स पे आने से पहले वील डू अ क्विक रिविजन। आज मुझे टच पेन इतना परेशान कर रहा है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड इसको क्या हो गया। आई यूज्ड टू राइट हियर ओनली, आई डोंट नो व्हाई एम आई नॉट एबल टू राइट सो प्रॉपर्ली टुडे। चलिए एनीवे, नॉट अ प्रॉब्लम। एनीवे आई एम एबल टू राइट ऑन वर्ड। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। डॉक्यूमेंटेशन होता है जब आप रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, उनको सेफ्टी, आप उनको मेंटेन रखते हैं, आप उनको रिट्रीव कराते हैं, आप उनकी प्रॉपर नेमिंग, कोडिंग, नोमेनक्लेचर, कोडिंग करते हैं, नाम रखते हैं, ठीक है ना? तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन में आता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अभी हमने ऊपर बात करी है कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर बात हो रही है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के। पहले मुझे बताओ कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रखोगे तो ऑर्गेनाइज कैसे रखोगे डॉक्यूमेंट्स को? डॉक्यूमेंट्स ही रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि क्या ये सिर्फ सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, आई वुड से नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट येस, सीएस हैज अ वेरी प्राइमरी रोल टू प्ले when it comes to documentation. So what are the good principles that need to be followed by documentation? The term documentation includes all form of documentation in a professional capacity in relation to professional duties like written, electronic record, audio, video, tapes, emails, fax, images, chart, checklist, communication, बुक्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स, वर्किंग नोट्स, वो जो होते हैं ना वर्किंग पेपर हम रेडी करते हैं ऑडिट्स में, वर्किंग नोट्स या कोई भी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन है, सारी बहुत ज़रूरी होती है। द डू गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। तो कहने जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतनी अच्छी गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस प्रैक्टिस होगी। दीज गाइडिंग प्रिंसिपल वुड हेल्प प्रोफेशनल्स, जो भी हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स करने वाले हैं इससे किसको हेल्प मिलेगी? प्रोफेशनल्स को मिलेगी। किस चीज़ में? डॉक्यूमेंटेशन में। सो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहला,
इससे पहले we talk about the guiding principles. First, we need to understand what is good documentation practice. Good documentation practice is a set of best practice. अच्छा, आप एक बात बताइए. This is a wardrobe. टेढ़ा मेढ़ा बन गया. But I'll make it on word. I don't know what is happening. ये आपका अलमीरा है. ठीक है. अब यहाँ पे आपने कपड़े रखे हैं. आपने बहुत अनऑर्गेनाइज करके रखे हैं. I am 1000% sure that whenever you want to find some clothes for yourself and you're going out, you won't be able to find them. Why you won't be able to find them? Because organized नहीं है, properly organized नहीं है, divided नहीं है. अब ये तो नहीं है कि इनके ऊपर नाम लिख देंगे हम कि कौन से क्या कपड़े हैं, इनके नाम नहीं रखेंगे, बट yes, एक organized नहीं है, right? If it is properly organized, then it will be very easy for you to find the desired one, right? But if it is not organized, properly not organized, then it will really be difficult for you. Same with what happens to documentation. It is the responsibility of the professional to maintain documents, right? और अगर वो properly maintain नहीं होंगे, properly name नहीं होंगे, coded नहीं होंगे, properly उनको फिर retrieve करने में मुश्किल होगी. Whenever you need a document, पता ही नहीं होगा कहाँ है document, कौन सी drive में है, लैपटॉप में है या पेन ड्राइव में है या किसी पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टोरेज में है, प्राइमरी स्टोरेज में है. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नो कि वेयर इज द डॉक्यूमेंट. सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं? पहला, क्लियर. डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर. क्लियर मीन्स द नेम शुड बी क्लियर. कंसाइज, छोटा नाम होना चाहिए. बहुत बड़ा नाम होगा तो उसको रिट्रीव करने में ही मुश्किल हो जाएगी. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में. कंसिक्यूटिव मतलब अरेंज होने चाहिए प्रॉपरली. कंटेम्प्रेरी मतलब कि नाम से पता चल जाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है. बार बार ओपन करके थोड़ी ना देखेंगे कि कौन डॉक्यूमेंट क्या बात कर रहा है. उसकी नेमिंग ऐसी होनी चाहिए दैट यू विल बी एबल टू रिट्रीव. कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स द नेम शुड बी सच दैट इट इज एक्सप्लेनिंग व्हाट द डॉक्यूमेंट इज. करेक्ट होना चाहिए. क्लाइंट सेंट्रिक. क्लाइंट सेंट्रिक मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड द क्लाइंट व्हाइल नेमिंग अ डॉक्यूमेंट. सपोजिंगली इफ आई हैव 5 क्लाइंट्स, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई. अगर ये वर्किंग पेपर एक ही कंपनी के और मैंने उसको नाम नहीं दिया हुआ तो मैं तो उसकी डिटेल्स पढ़ने लग जाऊंगी टू नो दैट विच क्लाइंट डज दिस बिलोंग टू, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द नेम शुड बी क्लाइंट सेंट्रिक. कोलैबोरेटिव मीन्स दैट अगर इसका लिंक किसी और डॉक्यूमेंट से है तो वो भी लिंकेज होना चाहिए, पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट में. एंड कॉन्फिडेंशियल. सो कैन यू जस्ट सी दैट दे ऑल आर सीज? हाउ मेनी सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 C, which tells you the guiding principles for good documentation. ठीक है ना? तो इन C's को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, so it is not explained. So चलिए हम ये C को क्या बात करते हैं. Clear, concise, complete. Consecutive मतलब numbered होने चाहिए properly. Contemporary मतलब it should be named in such a manner that it is telling about the document. कॉम्प्रिहेंसिव, लिटिल डिटेल, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए. कोलैबोरेटिव मतलब दिस डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड विद विच डॉक्यूमेंट, उसका लिंकेज पता होना चाहिए. एंड देन इट हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल. ये सारी चीज़ें अगर आप ये 10 की 10 चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं इन अ डॉक्यूमेंटेशन, देन एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर ऑन अ गुड ट्रैक, राइट? आप खुद सोचो ना कि आई एम अ PCS एंड आई एम नॉट मेंटेनिंग माई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली. ठीक है, अगर मैं क्लियर नाम नहीं लिखूंगी और मुझे 1 साल के बाद किसी वर्किंग पेपर की जरूरत पड़ी, क्लियर नाम ना होने के चक्कर में आई वॉज हेल कन्फ्यूज एंड आई कुड नॉट फाइंड माई डॉक्यूमेंट. बहुत लंबा नाम है, रिट्रीव करने में मुश्किल होगी. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कंटेम्प्ररी मतलब वो कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए. कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इतनी डिटेल हो कि आपको समझ में आए. उसके बाद करेक्ट होनी चाहिए. इनकरेक्ट डिटेल्स होंगी तो डेफिनेटली आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मिसलीड हो जाओगे, डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं मिल पाएगा. देन इट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर यू. एंड देन कॉन्फिडेंशियल. ठीक है ना? मैक्सिमम इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 6C भी आप लिखेंगे. 6 गाइडिंग प्रिंसिपल स्टार्टिंग विद C, तब भी आपको चलेगा. आप थोड़ा इंट्रो
द 6C जो एक गुड प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द कंक्लूजन। ठीक है ना। पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है? डेफिनेटली उसकी उल्टी जो हमने ऊपर पढ़ी है, डॉक्यूमेंट विद एरर्स, करेक्शन नहीं है, साइन नहीं है, डेटेड नहीं है, कुछ रीजन नहीं लिखा करेक्शन का, राइट ओवर्स मतलब एक के ऊपर एक लिखा हुआ है, जैसे ये ई है तो पेन ही नहीं चल रहा तो वैसे ही राइट ओवर हो गया, तो पता ही नहीं चल रहा है ई है या एफ है। ठीक है, तो राइट ओवर्स नहीं होना चाहिए, वाइट आउट नहीं कि पेन से हटाया आपने फिर उसके ऊपर लिखा, रिकॉर्डिंग सीक्वेंस में नहीं है तो बहुत गलत, आपको समझ में नहीं आएगा। डेलीगेशन रिकॉर्डेड नहीं है कि ये काम किसको आगे दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं फॉलो हुए। एसओपी होते हैं जो प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक प्रोफेशनल फॉलो करता है, वो नहीं हुआ हुआ। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर गया हुआ है, फ्लो चार्ट चेकलिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर सपोज एक बुक दे दी जाए और इंडेक्स ही नहीं है तो आपको आप कैसे देखेंगे कि अगर मुझे लेसन नंबर 10 देखना है या मैं कोई लेसन ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड बिकॉज देयर इज नो इंडेक्स, इट इज नॉट प्रॉपरली नंबर्ड। चाहे कितने भी अच्छी तरीके से लेसन दिया हो, डिटेल दिया हो, पर एक बेसिक चीज नहीं है, सो दैट विल रियली अफेक्ट यू। एग्जाम्पल क्या है गुड डॉक्यूमेंटेशन के? ऑब्वियसली उसका उल्टा, कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, कंसाइज, लेजिबल, एक्यूरेट होने चाहिए, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। कह रहे हैं फ्लो चार्ट अगर बना हुआ है वो बहुत सारे शब्दों का एक एक जिस्ट आपको दे सकता है, एक समरी दे सकता है। तो फ्लो चार्ट डायग्राम जहां जरूरत है वहां होने चाहिए, क्लियर एग्जाम्पल्स होने चाहिए, डोंट एज्यूम, इन्फॉर्मेशन शुड बी फैक्चुअल। कुछ सिचुएशन बेस्ड एग्जाम्पल बताए गए हैं। Scenario 1, documentation followed. Since the business immediately knows the person who recorded the compliance data, they are able to fetch more information and even able to answer follow-up questions of the regulatory. तो जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप प्रॉपरली आंसर करते हैं चीज़ों को और आपकी क्लैरिटी रहती है माइंड में। डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं हुआ ठीक से तो क्या होगा आपका, क्या अंजाम होगा आपका? डिफिकल्टी होगी फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, कंप्लायंसेस ठीक से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। Another case law what we have is the good documentation के do's and don'ts, electronic repository, then again case study, electronic के क्या फायदे हैं, नुकसान, ये मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अंडर कंपनीज एक्ट, ये हमें याद करना है, रूल 28। ठीक है ना। फिर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वर्चुअल, कोडिंग नोमेनक्लेचर इजी है, डिस्क्रिप्टिव वे में नाम लिखो, कैसे लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी जो ऊपर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसी को नीचे टैबुलर फॉर्म में बताया गया है। ठीक है ना, तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। सेफ्टी रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स करने के लिए क्या करा जाए, एंड देन हाउ द रिकॉर्ड्स शुड बी केप्ट, कीपिंग टुगेदर, लाइफ साइकिल ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसकी एक पॉलिसी भी है, डेरिवेशन ऑफ पॉलिसी, मॉडल पॉलिसी। तो कह रहे हैं हर डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसी होनी चाहिए जो हर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है ना। सेटिंग अप ऑफ रिकॉर्ड रूम इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिवेसी ऑफ रिकॉर्ड रूम इज अगेन इम्पॉर्टेंट, सजेस्टिव स्टेप जिससे आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, एंड देन चैप्टर इज डन। सो आपने शुरू से लेके एंड तक क्या देखा चैप्टर में, डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। So the topic what we are doing is case law, पहले हम बात करेंगे। In the matter of Mercer India Bulls Real Estate Limited, ROC NCLT, NCT of Delhi and Haryana has passed an adjudication order for non-compliance of provision of Section 10 of Section 118 mandatory observance of secretarial standards, जो फॉलो नहीं हुए। किसने फॉलो नहीं करे? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड ने। As per Section 206, the Companies Act, the central government carried out inspection of company accounts. इंस्पेक्शन करते समय ये पता चला कि कंपनी ने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं करा गया, मेंटेन किया उसको प्रॉपर सीरियल नंबर सीरियल वाइज नहीं करा, एंड देन रजिस्टर ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इंस्पेक्टर वो गलत निकली, तो आरओसी ने एडजुडिकेशन करते समय पेनल्टी लगाई कंपनी के ऊपर। सो इसमें जो पेनल्टी बताई गई है किसके रिस्पेक्ट में? रजिस्टर्स नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, इंफॉर्मेशन नॉट प्रॉपरली गैदर्ड, information that could not be retrieved from the company when required. इंस्पेक्शन करते समय इंफॉर्मेशन मिली नहीं, ये पता चला रजिस्टर भी गलत करे हुए, रजिस्टर मेंटेन नहीं है प्रॉपरली, तो पेनल्टी लगी। तो गुड डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्या डूज एंड डोंट्स है? डू रिकॉर्ड द डेटा एज सून एज इट इज जनरेटेड, तो डेटा को तभी नोट डाउन करिए जैसे जनरेट हुआ डेटा। डोंट डिले, डिले मत करिए।
नहीं तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी दिमाग से। रेफरेंस नोट जरूर डालिए, जिससे पहचानने में आसान हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। कंफ्यूजिंग मत रखिए डेटा को। कंप्यूटराइज सिस्टम में सॉफ्टवेयर का यूज करिए। हैंड रिटन हैंड रिटन मत करिए। अपनी हैंड राइटिंग कभी कभी समझ नहीं आती, दूसरे की क्या समझ में आएगी। ठीक है ना। तो डूज एंड डोंट्स है गुड डॉक्यूमेंटेशन के। तो आज हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करी। देखिए कितने कितने सारे पेजेस के बारे में हमने बात करी है। अगर मैं नोट्स बनाती तो शायद सिर्फ की पॉइंट्स को मैं, ऑब्वियसली नोट्स का मतलब क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू लाइक लॉट ऑफ टाइम्स दैट नोट्स आर ओनली 70 to 80%, वैसे 70-75% ही होते हैं, और study material. And now when I'm teaching 100% from study material, so which is better? What is better for you? 70 to 80% or 100%? This is easy to teach. This is difficult to teach. क्योंकि ज़्यादा है. This is easy to learn. This is difficult to even read. क्योंकि ज़्यादा है. This will give you 60% रिटेंशन. मतलब अगर कोई 70% पढ़ेगा तो दिमाग में कितना रख पाएगा? 60%, शायद उससे कम. 100% पढ़ोगे तो 90% दिमाग में रहेगा, 60% दिमाग में रहेगा. लिख के कितना होगे? 50%. मार्क्स कितने मिलेंगे? 40, एंड यू फेल. 90% दिमाग में जाएगा, 80 याद रहेगा, 70% लिख के आओगे, मार्क्स मिलेंगे 60%, एंड यू पास. सिंपल लॉजिक, सिंपल 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 mathematics, I would say. So please do 100%. So you will remember 100%, 90%, लिख कर आएंगे 80%, तब जाके 70% मार्क्स आएंगे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा रिटेन रहेगा दिमाग में. सो धीरे धीरे करिए, अच्छे से करिए. लिसन टू एवरी पॉइंट, लिसन टू एवरीथिंग, एंड definitely the more you will listen, the more here will be retained, right? So you should be happy and glad that we are doing everything from study material, right? So next class we'll continue from electronic repository of documents. From this topic we are going to continue, right? Till then, please study hard, stay safe, and keep connected, and maintain your consistency and discipline when it comes to studies, because that will only give you success. So see you in the next session, guys.